Good evening, my dear friends. Today we are beginning our class to understand the Indian history portion. This is the first lecture. So today we will take with very simple introduction to understand about the certain dates, the chronology, so that our preparation would be coherent and consolidated. Now, Indian history, whenever we talk about, first we divide it into three parts: the ancient, medieval, and modern. The Indian history is divided into the ancient history, second is medieval history, and third is the modern history. Okay, these are the scoring areas. If you develop a proper understanding and you can retain it for a very longer period, so develop the understanding. Okay, so when we say ancient history, medieval history, modern history, there's a way which connects all these historical development. So let's begin with that basic notion. इन सब के पहले एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री, और उसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्या, स्टोन एज. ठीक है. सो प्री हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है. एक ट्रिक है टू रिमेम्बर ऑल दिस. मतलब बिगिनिंग कहां से होता है? फर्स्ट इट इज योर प्री हिस्ट्री, देन वी विल एंटर इनटू एंशिएंट, देन वी विल एंटर इनटू medieval, then we will enter into modern. So prehistory के भी तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, एक ट्रिक याद रखिए, PMNCH. ठीक है. जैसे सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलते PMCH, पेन को साइलेंट कर लो, so you can keep it for longer time with this trick. So PMNCH basically prehistory is divided into this part. क्या क्या है? Let's see. P for the Paleolithic. P for Paleolithic. Okay. M for Mesolithic. M for Mesolithic. N for Neolithic. N for Neolithic. C for Chalcolithic. C for Chalcolithic. और H basically this refers to Harappan civilization. Okay, Harappan civilization. और दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है. जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, तो सिंस क्रोनोलॉजी में ही है, ओके, तो दिस इज प्री हिस्ट्री टू एंशिएंट, इसलिए टू डेवलप दिस ट्रिक इसको ऐसे बना दिए हम लोग, PMNCH. तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज ध्यान रखेंगे. द पैलियोलिथिक, द पीरियड बिलोंग्स टू the 2 million BC to the 10,000 BC. K for 1000. Okay, so 2 million BC to 10,000 BC, this is Paleolithic. Mesolithic is 10,000 BC to 8,000 BC, this is Mesolithic. Neolithic is 8,000 BC to 4,000 BC, and Chalcolithic, this belongs to 2600 BC to 700 BC. Okay, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, this belongs to 2500 BC to 1750 BC. इस कुछ सिंपल डेट्स हैं, इनको याद रखेंगे. You can note few terms like whenever we say lith, in geography you will study lith का मतलब होता है rock. Okay, it means during this time जो weapons tools होते थे all are made up of rock, so that is why this entire period is sometime called stone age. Okay, so Paleolithic, that is your old, Mesolithic is your late, and Neolithic is new, stone age. Chalcolithic is also known as charcoal age. Chalcolithic को क्या बोलते हैं? और charcoal age, or it is also known as
amalgam age. ठीक है, it is also known as amalgam age because during this time alloy का यूज शुरू हो गया था. ठीक है, ये याद रखेंगे अभी. So let's move further कि we are entering into ancient civilization. ठीक है, तो ancient civilization और ancient history, first जो civilization है that is your Indus Valley civilization or it is also known as Harappan civilization. Ancient history begin from Indus Valley civilization or Harappan civilization. Why Indus Valley civilization and Harappan civilization? Because Harappa was the first city that to be discovered. Harappa, the first city was discovered. Okay, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो पीरियड क्या कितना है इसका? दैट इज 2500 BC टू 1750 BC. ओके, तो अराउंड 2200 से 2000 BC दैट वाज द मैच्योर फेज. सो अभी रफली क्या याद रखना है? 1750 BC तक क्या था अपन का? हड़प्पन सिविलाइजेशन. आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सा पीरियड में एंटर करेंगे हम लोग? वैदिक सिविलाइजेशन. ओके, दैट इज Vedic period or Vedic era. So next is your Vedic period. Vedic period. So Vedic period is classified into two parts. That is your early Vedic and later Vedic. This is called early Vedic period. And second one is later Vedic period. During early Vedic is also called Rig Vedic period. It is called Rig Vedic period. Okay, so let's see first. When we say early Vedic period, it means date belongs to the 1500 BC to 1000 BC. Okay, this is early Vedic period. During this time, Rig Veda was written. During this time, Rig Veda was written, and during this time, advent of Aryans. Advent of Aryans. ये important चीज याद रखेंगे कि for the time being, the period belongs to 1500 से 1000 BC. ऋग वेदा was written और उस समय आर्यंस का एडवेंट होता है, मतलब आर्यन का यहाँ पर इंडिया में आते हैं. When we talk about later Vedic period, the period of 1000 BC to 600 BC. This is known as later Vedic period. इस समय क्या क्या होता है? जो रेस्ट ऑफ द वेदास है, कितने वेद हैं? टोटल 4 है. तो ऋग वेदा was written during this time. अब क्या होता है? The next Vedas like Yajurved. Okay, Yajurved, Atharved, Samved. Okay, all these Vedas are written during this later Vedic time. In addition to these Vedas, और टेक्स्ट थे like Brahmanas, Aranyaks. ये सब नाम याद रखेंगे धीरे धीरे. Aranyaks, Upanishads, Samhitas. Okay, Samhitas. All these texts were written during this time. So that is called later Vedic period. Okay. Now ये टेक्स्ट क्या है? बेसिकली फॉर द टाइमिंग ये समझिए कि जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऑल आर रिटन इन लैंग्वेज जो कि सब लोग समझ नहीं सकते थे. तो जैसे नॉर्मल होता है ना कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प बुक चाहिए, तो दे आर काइंड ऑफ द थिंग्स कि ये समझने के लिए एलाबोरेट डिटेल डिस्क्रिप्शन था. ब्राह्मणस, अरण्यक, उपनिषद, संहितास जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखे गए थे. तो ड्यूरिंग विच पीरियड इट हैपेंड? ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम. ओके, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि दिस इज 1000 BC. दिस 1000 BC इज ए लैंडमार्क डेट. व्हाई? बिकॉज डिस्कवरी ऑफ आयरन. इसको याद रखेंगे. आयरन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. डिस्कवरी ऑफ आयरन. ठीक है. सेकेंड चीज, टुवर्ड द एंड ऑफ ऋग वैदिक टाइम a text was there, that is Purush Sukta. What was the text? Purush Sukta. Purush Sukta. According to Purush Sukta, Varna system was introduced. Varna system was introduced. ठीक है.
Varna system was introduced. Which time? Towards the end of the Rig Vedic period, Varna system was introduced. So these are the few facts you should remember. Now let's move. 600 BC के बाद क्या होता है? Now 600 BC to 400 BC, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? दो पार्ट में स्टडी करते हैं. नंबर वन, फर्स्ट वन इज योर रिलीजियस डेवलपमेंट. ठीक है. एंड सेकंड वी विल स्टडी द फॉरेन इन्वेजन. ओके, इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन होता है इस समय. इसी पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे और सारे रिलीजन डेवलप होते हैं. सो इट वाज कॉल्ड रिलीजियस डेवलपमेंट फेज. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अराउंड 64 रिलीजन इसमें डेवलप हुए. ओके, roughly, not exactly, but you can say 64-65 religion was developed during this 200 years period. Okay, important religion क्या कहते हैं? Like जैसे first we talk about Hinduism. Okay, Hinduism, Buddhism, okay, Jainism, etc. These were important religions which were developed during this period. Hinduism, Buddhism, Jainism. Basically, when we talks about in religious chronology, so Vedic era के बाद कौन सा religion आता है? That is your Hinduism. Okay, first you remember. After the Vedic religion, which religion succeeded? It is Hinduism. Now, when we talk about Hinduism, okay, when we talk about Hinduism, तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? It succeeded the Vedic religion. Now Hinduism is divided into two schools, एक आस्तिक स्कूल एंड नास्तिक स्कूल. ठीक है. आस्तिक स्कूल में 6 इंपॉर्टेंट हिंदू फिलोसफी थे. कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा and उत्तर मीमांसा. These are the 6 Hindu philosophy. ठीक है, 6 Hindu philosophy. The Hinduism is divided into आस्तिक स्कूल and नास्तिक स्कूल. इसके 6 स्कूल हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा is also known as वेदांता स्कूल. ठीक है, ये फॉर द टाइमिंग याद रखेंगे. There were also नास्तिक स्कूल. नास्तिक स्कूल लाइक द चारवाक स्कूल. ठीक है, चारवाक स्कूल, आजीविका स्कूल. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे. हिंदुइज्म सक्सीडेड द वैदिक रिलीजन एंड हिंदुइज्म की कुछ फिलोसफी थे. अकॉर्डिंगली वी डिवाइड इनटू आस्तिक एंड नास्तिक. ये सुप्रीमेसी ऑफ वेदा पे बिलीव करते थे. दे बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ वेदा. ठीक है, आस्तिक स्कूल बिलीव्ड इन सुप्रीमेसी ऑफ वेदा and they do not believe in supremacy of Veda. Like चारवाक स्कूल. चारवाक स्कूल एक बहुत फेमस कोटेशन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबो. ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबो. इट मीन्स व्हाट? ऋणम कृत्वा घृतम पिबो मतलब ऋण लो और घी पियो. दिस वाज वन ऑफ द मीनिंग, कोलोकियल मीनिंग. बट चारवाक स्कूल का एक पॉजिटिव मीनिंग भी है. तो टॉक अबाउट डेफिसिट फाइनेंसिंग, which talks about डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग कि मतलब लोन लेना, ऋण लेना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं हम लोग. उसका यदि एसेट क्रिएशन में यूज कर रहे हैं देन इट इज ए गुड थिंग. बट यदि ऋण लेके, लोन लेके हम मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज ए बैड थिंग. ओके, so that is talk about in Charvak school, Nastik school. Okay, let's move on. So additionally Hinduism, Buddhism, Jainism, ये सारे रिलीजन उस समय डेवलप हुए ड्यूरिंग 600 BC to 400 BC. ओके, सेकेंड थिंग क्या होता है, उस समय फॉरेन इन्वेजन भी होता है. तो पहला फॉरेन इन्वेजन हमारे इंडिया पे कब होता है? इट वाज द पर्शियन इन्वेजन. ठीक है, कब हुआ था? 600 से 400 BC में. ये दिस पर्शियन इन्वेजन.
तो पर्शियन इन्वेजन में क्या याद रखना है फॉर द टाइम बिंग, कौन सा उसमें रूलर था, डेरियस वन, ठीक है, रूलर वाज डेरियस वन और इट इज सिंपली कॉल्ड दारा वन। पर्शियन इन्वेजन के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई, इंडिया लर्न द खरोष्ठी स्क्रिप्ट, जो हम लोग बात करते हैं खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट। सेकंड, सट्रापी सिस्टम, सट्रापी सिस्टम, सट्रापी सिस्टम का मतलब प्रोविंस को सट्रापी बोलते थे, तो ये भी फॉर द टाइमिंग याद रखिए, फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम, ओके। तो फॉरेन इन्वेजन हुआ, पर्शियन इन्वेजन, दारावन, खरोष्ठी स्क्रिप्ट इंडिया सीखा, एंड द सट्रापी सिस्टम दैट इज फ्यूडल सिस्टम इंडिया हैव लर्न्ड। लेट्स मूव नाउ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म और बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, देयर इज अ फैक्ट कि इसी पीरियड में क्या होता है, 600 BC टू 400 BC टेरिटोरियल पावर का भी राइज होता है, ठीक है, क्या राइज होता है, टेरिटोरियल पावर्स, मतलब ग्रेजुअली अब किंगडम अंपायर्स बनेगा। तो टेरिटोरियल पावर, इसमें तीन चीज याद रखेंगे, क्या कि फर्स्ट रिलीजियस मूवमेंट, सेकंड फॉरेन इन्वेजन पर्शियन का कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे, थर्ड एस्पेक्ट क्या है, अब टेरिटोरियल पावर का भी राइज होता है। कि टेरिटोरियल पावर क्या है कि इंडिया में विंध्याचल रेंज के नॉर्दर्न पार्ट, दैट इज योर नॉर्थ इंडिया, अब वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दैट इज अंगुत्तरा निकाय। व्हाट इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तरा निकाय। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय, जो नॉर्थ ऑफ विंध्याचल रेंजेस, they were 16 territorial powers. How many territorial powers? 16 territorial powers थे, ठीक है, और ये 16 territorial powers आपस में लड़ते रहते थे, there were 16 territorial powers, और ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, they are in constant fight with each other to increase their territory। कुछ लिस्ट है, उनके नाम याद रखेंगे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, आसक, अवंती, गंधार एंड कंबोज, ठीक है, दीज वर द 16 महाजनपदास थे। महाजनपदास अभी छोटे छोटे एक टेरिटोरियल एरिया को महाजनपदास बोलते थे, तो 16 महाजनपदास थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, आसक, अवंती, गंधार एंड कंबोज। इनके कैपिटल याद रखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मैपिंग याद रखेंगे कि कौन सा जो पावर था वो किस अभी के करंट लोकेशन क्या है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, विल टेक अप ऑल इन डिटेल फॉर द टाइम बिंग। ये 16 महाजनपदास आपस में लड़ते रहते थे फॉर टेरिटोरियल सुप्रीमेसी, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, व्हाट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्ध, ठीक है, ये 16 महाजनपद घटते घटते 4 इंपॉर्टेंट महाजनपदास बने, और कौन थे, एक ट्रिक है, VAKM, ठीक है, ये 16 महाजनपदास एक दूसरे को जीतते जीतते 4 इंपॉर्टेंट बचे, उसमें 4 इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट थे, VAKM, वैशाली, अवंती, कौशल एंड मगध, वैशाली, अवंती, कौशल एंड मगध। मगध उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई कि वी हैव सीन कि 1000 BC में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, आयरन का डिस्कवरी हुआ, तो आयरन और वाइट्स नजदीक थे। देन मगधन एरिया चूंकि गंगा के दोआब रीजन था, तो फर्टाइल लैंड थे, तो एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हुआ वहां पर, तो आयरन वेपन्स से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुए। देन वी विल सी कि मगध का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कैपिटल का वो बहुत ही अच्छा था, दैट वाई कि मगध इन सब में सबसे पावरफुल होते चला, ठीक है, और मगध की जो गद्दी वो पावर सेंटर बन गई, व्हाट ना, मगध, the throne of Magad become the power center, okay, the throne of Magad become the power center, so the Magad के throne पे जो बैठता था that will rule for
ए बिगर पार्ट ऑफ द एरिया। सो मगध पे अब क्या होगा, डेवलपमेंट किंगडम, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। अब किंगडम डेवलप होगा, तो मगध पे कौन कौन बैठेंगे, डायनास्टीज होंगे अब। तो इम्पोर्टेंट, मगध की गद्दी पे अब डायनास्टीज बैठेगा। So first dynasty which sat on the throne of Magad is Haryanka dynasty. ठीक है, the first dynasty is your Haryank dynasty. Then Sisunak dynasty. Then Sisunak dynasty. Third is your Nanda dynasty. Nanda dynasty. Fourth is your the Maurya dynasty. ठीक है, और ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी अब ये मगध किंगडम का पॉलिटिकल पावर सेंटर था, अब ये अंपायर बनेगा। ओके, तो यहां से अंपायर कहलाएगा, मगध अंपायर। ठीक है, तो हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। सो ड्यूरिंग द हरियंग डायनेस्टी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, इसको याद रखेंगे। नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अजातशत्रु, नंबर 3 उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। शिशुनाग डायनेस्टी में कौन इंपॉर्टेंट है, काला अशोक। नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद एंड धनानंद, तो इंपॉर्टेंट है धनानंद एंड महापद्मनंद। क्लियर। मौर्य डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, रूलर्स याद करने हैं। दिस इज योर हरियंग डायनेस्टी, द रूलर्स आर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रूलर काला अशोक। नंद डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रूलर दी धनानंद, महापद्मनंद। दैट मौर्यन डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। ओके, उदयन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल अपना बनाया। ठीक है, हु मेड द पाटलिपुत्र एज कैपिटल, उदयन। उसके पहले कौन सा कैपिटल था, राजगीर, याद रखेंगे। तो मगध बिकम द पावर सेंटर। अब ये मौर्यन के टाइम में आते आते क्या हुआ कि दिस बिकम्स द अंपायर। तो कुछ क्रोनोलॉजी याद रखेंगे कि इन मौर्यन अंपायर्स व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड फॉर 321 बीसी से लेके 298 बीसी। देन बिंदुसार रूल्ड फॉर 298 से लेके 273 बीसी। देन अशोका रूल्ड फॉर 269 बीसी से 231 बीसी। और ये जो 4 साल थे, दिस वाज द वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो द मौर्यन पीरियड के ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। सो ड्यूरिंग दिस मौर्यन पीरियड और बिफोर दैट मौर्यन पीरियड, यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेजन होता है, दैट इज फॉर अलेक्जेंडर इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। और इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर कब होता है, 326 बीसी। डेट्स में ही याद रखेंगे। सो आफ्टर द मौर्यन एम्पायर दैट इंडिया बिकम एन एम्पायर। ठीक है ना, अशोका adopted or patronized Buddhism. Asoka patronized Buddhism. Chandragupta Maurya patronized Jainism. And Bindusar patronized Ajivika sect. ठीक है, so due to patronization by Asoka, Buddhism, जो हिंदू के मिनिस्टर्स थे और जो भी हिंदू कमांडर्स थे, आर्मी थे, वो उसे क्या होते थे, they are basically not satisfied with Asoka. So it is called pacifist policy of Asoka. But it is called pacifist policy of Asoka. तो pacifist policy of Asoka के चलते क्या हुआ कि बहुत सारे जो हिंदू उसके ऑफिशियल्स थे, कमांडर्स थे, वो अशोका से सेटिस्फाइड नहीं थे। सेकेंड थिंग क्या किया था अशोका ने कि अपने he adopted what Buddhism, that he followed the principles of Dhamma. ठीक है, all we will take up in detail. So pacifist policy अशोका के चलते ये बेसिकली सारे हिंदू, उसके कमांडर्स, उसके मेंबर्स, उसके ऑफिशियल्स क्या होते थे, उससे डिससेटिस्फाइड थे। दैट इज कॉल्ड pacifist policy of अशोका।
तो एक टाइम क्या होगा, ड्यू टू दिस पैसिफिस्ट पॉलिसी ऑफ अशोका ना, हिंदू जो रूलर्स थे वो रिवोल्ट करेंगे। लेट अस सी कैसे हुआ कि आफ्टर द अशोका सक्सेसर्स आए, बट उसके बाद क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट का सेंटर था पाटलिपुत्र, ठीक है, बहुत सारे रूलर्स आए, और वेस्टर्न पार्ट रूल्ड बाय कुणाल एंड लेटर बाय संप्रीति। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट रूल्ड बाय पाटलिपुत्र बाय बृहद्रथ। 187 BC पे बृहद्रथ was assassinated by Sung, पुष्यमित्र Sung, and he founded the Sung dynasty. ठीक है, and Kunal and Samprati ruled वेस्टर्न पार्ट पे अराउंड 200 BC इन्वेजन शुरू होता है। किसका इन्वेजन होगा? फॉरेन का इन्वेजन, फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। वेस्टर्न साइड से फॉरेन इन्वेजन शुरू होता है, ठीक है, वेस्टर्न साइड से फॉरेन इन्वेजन शुरू होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? याद है, ट्रिक है, जीपीएस, ओके, या आईपीएस। इस ट्रिक से याद रखेंगे कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए। जी फॉर इंडो ग्रीक्स, ठीक है, जी फॉर इंडो ग्रीक्स, पी फॉर इंडो पार्थियंस और सिंपली पार्थियंस, एंड एस फॉर सकास और साइथियंस। सकास और साइथियंस, ये ट्रिक से याद है। इवन द वेस्टर्न साइड अराउंड 200 BC द फॉरेन इन्वेजन स्टार्टेड। और कौन कौन से इन्वेडर्स थे ये जीपीएस याद रखेंगे, दी इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस, साइथियन और सकास। और इन सब के बाद कौन आता है? कुषाण। इन सब के बाद कौन आता है? कुषाण। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स में अभी फॉर द टाइम बिंग एक इंपॉर्टेंट रूलर था, उसका नाम याद रखेंगे, दैट इज मिनांडर। कौन सा रूलर था? दैट इज मिनांडर। साइथियन शक में एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था रुद्र दमन। रुद्र दमन और रुद्र दमन 1। और इन पार्थियंस ए इंपॉर्टेंट रूलर दैट इज कॉल्ड गोंडोफेयस। गोंडोफेयस। देन कुषाण आते हैं। अब कुषाण में एक इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज योर कनिष्का, ठीक है, वेल नोन। तो 77 से लेके 144 AD इस वाज द टाइम ऑफ कुषाण। कुषाण हेजेमनी। तो वेस्टर्न साइड में ये डेवलपमेंट होता है, दैट इज इंडो ग्रीक्स, दैट इज साइथियंस, पार्थियंस एंड कुषाण का इनका अटैक होता है, रूल बनता है, रूल एस्टैब्लिश होता है। एंड ईस्टर्न साइड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है? द सुंग डायनेस्टी कम टू द पावर, पुष्यमित्र सुंग who was the founder and he was followed by his son Agnimitra, ठीक है, was followed by Agnimitra. During this time what? The Hindu revival phase, the Hinduism revival phase, ठीक है। बुद्धिज्म के बाद हिंदुइज्म ऑफ रिवाइव किया होगा नेचुरली बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स, so हिंदू रिवाइवल फेज शुरू होता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। तो आफ्टर दिस focus on eastern side, the Sung dynasty was followed by Kanva dynasty. It was followed by Kanva dynasty. Kanva dynasty एक short period का dynasty था that ruled only for 45 years. ठीक है, कुछ रूलर्स थे लाइक कन्व का फाउंडर कौन था? वासुदेव कन्व, फॉलोड बाय वासुदेव कन्व, नारायण, सुशर्मन एंड देवभूमि और देवभूति। देवभूमि और देवभूति। तो वसुदेव कन्व, नारायण, सुशर्मन एंड देवभूमि और देवभूति। तो देवभूमि, देवभूति एंड उसके बाद फिर क्या होता है? कन्व डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय द सतवाहन डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है। सो सतवाहन डायनेस्टी दैट इज established by आंध्रा रूलर
दैट इज सिमुक सातवाहन। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय आंध्र रूलर सिमुक सातवाहन एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का पीरियड याद रखेंगे 106 से लेके 130 एडी तक। ठीक है, सो ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पे ये डेवलपमेंट हो रहा है, ईस्टर्न फ्रंट पे ये डेवलपमेंट हुआ। कंटेम्प्रेरी 144 130 एडी के आसपास है। तो व्हाट वी हैव सीन कि मौर्यन एम्पायर है ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड क्या डेवलपमेंट होता है, व्हाट वी हैव रीच्ड कि we have the Kusan rulers and here we have reached कि Satwahan rulers। ठीक है, कुसान रूलर्स में कौन इंपॉर्टेंट, कनिष्का। सतवाहन में कहां तक पहुंचे हम लोग, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, वी हैव क्रॉस द जीरो फ्रेम, मतलब बीसी से एटी भी आ गए हम लोग। नाउ फिर क्या डेवलपमेंट होता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द डेवलपमेंट टू द साउथ इंडिया कि साउथ इंडिया में क्या क्या हो रहा था। तो साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में अराउंड द 2000 बीसी, शॉर्ट हिस्ट्री है, अराउंड द 2000 बीसी देयर वाज नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, इन द साउथ इंडिया अराउंड 2000 बीसी दैट नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक कल्चर था। देन ये 1000 बीसी आते आते तक इट वाज रिप्लेस्ड विथ मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, इट वाज रिप्लेस्ड विथ मेगालिथिक कल्चर और अराउंड द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। ठीक है, क्रिश्चियन एरा देयर वाज कॉल्ड आंध्रा कल्चर। व्हाट वाज आंध्रा कल्चर, वो सिमुक सतवाहन, दैट इज आंध्र कल्चर। एंड द स्टेट फॉर्मेशन कहां से शुरू होता है, अराउंड द 200 BC। व्हाट वाज दैट, द स्टेट फॉर्मेशन, social class development took place in South India. This is a brief history that around 2000 BC there was a Neolithic and Chalcolithic culture, 1000 BC megalithic culture and Christian era Andhra culture developed. 200 BC के आसपास state formation. What do you mean by state? In the polity lecture we have already seen कि state क्या होता है, it is an amalgamation of the 5 component, territory, people, sovereign government. Okay, तो स्टेट फॉर्मेशन मतलब स्टेट ऑफ किंगडम वगैरह बनेगा। तो द अर्ली किंगडम, ठीक है, इन साउथ इंडिया में कौन थे, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट, चोला, चेरा, पांड्या। चोला, चेरा एंड पांड्या। और इसके साथ एक और था सटिया पुत्रा। ठीक है, along with this there is a kingdom that is Satyaputra. So there were 4 kingdom of South India. They were early kingdom. They were south of Krishna river, in the south of Krishna river. ठीक है, कृष्णा रिवर के साउथ में कौन से 3 किंगडम थे, चोला, चेरा, पांड्या, साठियापुत्रा। और ये कहाँ मेंशन है, अशोक इंस्क्रिप्शन, मतलब मौर्यन एम्पायर में इन लोगों का फ्रेंडली रिलेशन था। इन दी अशोकन इंस्क्रिप्शन ये तीनों अंपायर, चोला किंगडम, चेरा किंगडम, पांड्या किंगडम, इसके साथ इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो इन दी साउदर्न इंडिया एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज ड्यूरिंग दिस 300 BC टू 300 AD, ये ट्रांजिशन फेज है जिसमें BC से AD कन्वर्ट हो रहा है। So there is a period that is called Sangam period. ठीक है, it is an assembly of Tamil scholars or Tamil
poets. So Sangam, it is an assembly of the Tamil scholars and Tamil poets, and this entire period is called Sangam period. And इस संगम पीरियड में ये असेंबली ऑर्गेनाइज हुए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांडियन रूलर्स. ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ पांड्या रूलर्स. We have seen Chola, Chera, Pandya rulers थे. So Pandya rulers had organized an assembly that is called Sangam, and under the patronage of the Pandya rulers, it is an association or it is an assembly of scholars and poets. तो तीन संगम हुए थे. How many संगम? तीन संगम हुए थे. इसमें से फर्स्ट संगम कहाँ हुआ था? मदुरई. सेकेंड संगम कहाँ हुआ था? कपाटापुरम. सेकेंड संगम कहाँ हुआ था? कपाटापुरम. एंड थर्ड संगम कहाँ हुआ था? एट मदुरई. तीन में दो मदुरई में हुआ था. व्हाट डू यू मीन बाय मदुरई? इट इज ए तमिल वर्ड फॉर मथुरा. ठीक है, इट इज ए तमिल वर्ड फॉर मथुरा, दैट इज मदुरई. So 300 BC to 300 AD, this is called Sangam period, Sangam era. Sangam means assembly of Tamil scholars and poets. तीन संगम हुए at Madurai, Kapatapuram and Madurai under the patronage of the Pandyan rulers. Okay, this Sangam period is known as golden period of Tamil literature. It is called golden period or Augustan period. ठीक है, it is called Augustan period of Tamil literature. ठीक है, इसमें से कुछ कुछ लिटरेचर के एग्जांपल्स याद रखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, जैसे तोलकप्पियम, तिरुकुरल, शीलापद्दिकरण, etc. So these are the important text. कि golden age Augustan period of the Tamil literature, important literatures हैं कुछ कुछ, तोलकप्पियम, तिरुकुरल, शीलापद्दिकरम, etc. So this is the 300 to 380. Now come back to North India. So now in North India, कि when the Kusan Empire declined. So what happened? कि जब एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इंडिया किसी सेंट्रलाइज पावर से डिक्लाइन होता है, नंबर ऑफ छोटे छोटे प्रोविंसेस या पावर सेंटर्स डेवलप होते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन द कुसान एम्पायर डिक्लाइन, द नंबर ऑफ पावर सेंटर्स वर डेवलप्ड. उसमें से जो गुप्ता पीरियड, बेसिकली वी आर एंटरिंग इनटू अब गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे. तो पावर सेंटर क्या था? मगध. तो वन ऑफ द रूलर दैट इज कॉल्ड श्रीगुप्ता. One of the ruler that is Srigupta who brought Magad under his control. So Magad ले आया, इस तरह से गुप्ता एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है. ठीक है, तो मगध वाज द सेंटर. सो गुप्ता पीरियड, नाउ वी आर एंटरिंग द गुप्ता पीरियड. तो गुप्ता पीरियड जनरली डेट है 320 से लेके 540 AD तक. तो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं? इट वाज श्रीगुप्ता. ठीक है, ये सब नाम याद रखेंगे. फॉलोड बाय घटोत्कच, ठीक है, डेट्स वाइज. उसके बाद आफ्टर द घटोत्कच द इंपॉर्टेंट रूलर्स पे चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, Chandragupta II, that is also known as Vikramaditya. Then Kumargupta, then followed by Askandagupta. Okay, then followed by Askandagupta. तो पीरियड याद रखेंगे 320 से लेके 335 AD, 335 से लेके 375 AD, 375 से लेके 415 AD,
415 से लेके 455 एडी, 455 एडी से लेके 467 एडी. Okay, so these are the times when these rulers ruled. Samudragupta was known as Indian Napoleon. इंडियन नेपोलियन. और कौन बोला था इनको इंडियन नेपोलियन? डॉक्टर वी ए स्मिथ. तो डॉक्टर वी ए स्मिथ. ठीक है. सो गुप्ता पीरियड, एंड गुप्ता पीरियड इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ व्हाट? हिंदुइज्म. ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म. नाउ लेट्स मूव कि आफ्टर द गुप्ता पीरियड फिर से क्या होगा? एक सेंट्रलाइज्ड पावर डिक्लाइन हुआ है, तो बहुत सारे प्रिंसिपलिटीज अलग होंगे. सेकंड क्या होता है? फॉरेन इन्वेजन भी होगा शुरू. तो गुप्ता पीरियड जब डिक्लाइन होगा तब एक तरह से क्या होगा? फॉरेन इन्वेजन शुरू होगा. ठीक है, ये तो लॉजिकल चीज है कि फॉरेन इन्वेजन शुरू होगा. एंड फिर इंडिया was divided into smaller पावर सेंटर्स, और उसमें से फिर एक राइज होगा और एक पावर सेंटर को कंट्रोल करेगा, फिर वो पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करेगा. यही पूरा थीम है. तो अब क्या होगा कि वी आर एंटरिंग इनटू द वर्धन एम्पायर. वी आर एंटरिंग इनटू द वर्धन एम्पायर. ठीक है. तो वर्धन एम्पायर क्या करेगा कि जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन तो एक प्लेस है दैट इज थानेश्वर. तो थानेश्वर इट वाज प्रभाकर वर्धन. ठीक है, कौन था ना? प्रभाकर वर्धन. तो प्रभाकर वर्धन हैज ब्रॉट थानेश्वर अंडर हिज कंट्रोल एंड फाउंडेड एन एम्पायर दैट इज कॉल्ड वर्धन एम्पायर. ठीक है, वर्धन एम्पायर. एंड अंडर हिज सन हर्षा दैट इज हर्षवर्धन, ये पावरफुल हुआ, बहुत कंसोलिडेटेड, ए पावरफुल सेंट्रल एम्पायर बना. ठीक है. So let's see a little bit about Vardhan Empire. So we are talking about the Vardhan Empire. Vardhan Empire. तो Vardhan Empire में क्या है कि important ruler that is Harshvardhan. Harshvardhan. Period 606 to 646 AD. ठीक है. क्या? Patronization to Buddhism. Okay, this is the Vardhan Empire. So till this point what we have seen, that we have started with what? Stone Age, and that is the PMNCH, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. Then we enter into Harappan civilization. After the Vedic era, where later and early Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड दैट इज 1000 बीसी से लेके, दैट इज 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक. लेटर दैट इज 1000 बीसी टू 600 बीसी. ओके. So after the 600 to 400 BC, what was that? It was religious movement, reformation period, and also the kingdom started territorial power development. So 16 महाजनपदास थे, उसमें से around during the time of Buddha, what was that? During the time of Buddha, that VAKM चार important हो गए, वैशाली, अवंती, कौसर and Magध, and due to its strategic factors, Magध become the power center. ठीक है. तो आफ्टर द मगध क्या होगा? किंगडम डेवलप होगा एंड एम्पायर डेवलप होगा. तो फर्स्ट डायनेस्टी हरियंग डायनेस्टी, ओके, देन फॉलोड बाय शिशुनाग डायनेस्टी, देन फॉलोड बाय नंद डायनेस्टी, देन फॉलोड बाय मौर्यन डायनेस्टी. एंड ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी दिस मगध बिकम एंड व्हाट? एम्पायर. तो मगध के रूलर्स याद हो गए होंगे. दिस इज चंद्रगुप्त मौर्य, फॉलोड बाय बिंदुसार, देन अशोक. So after the Ashok, this Magad Empire was divided into two parts, eastern part and the western part. Western part, foreign invasion started around 200 BC. Eastern part, the succession started तब 187 BC. इसका succession होता है Sung dynasty. Founder पुष्यमित्र Sung. Revival of Hinduism.
वेस्टर्न पार्ट पे किसका इन्वेजन होता है? दैट इज जीपीएस, दैट इज इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस, इंडो साइथियंस। याद हो जाएगा। इंडो ग्रीक्स में इंपॉर्टेंट रूलर मिनांडर, इंडो पार्थियंस में इंपॉर्टेंट रूलर गोंडोफेयस एंड साइथियंस में इंडो दैट इज रुद्रदमन वन। Then the Sung dynasty followed by what? Kanva dynasty. Kanva dynasty was followed by Simuk Satwahan dynasty. ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमीपुत्र कर्णी। यहाँ पर इनके बाद कौन आता है? कुषाण। कुषाण में इंपॉर्टेंट रूलर कौन? दैट इज योर कनिष्का। सो व्हेन द कुषाण डायनेस्टी डिक्लाइन, फिर कौन सा डायनेस्टी आता है? गुप्ता पीरियड। So in the Gupta period, who was the founder? It was the Sri Gupta. His son followed him, that is Ghatotkacha. Rulers कौन important थे? Chandragupta one, followed by Samudragupta. Then it is followed by Vikramaditya two, Vikramaditya or simply Chandragupta two. Then Kumar Gupta and then Skandagupta. Okay, so period कौन सा है? 320 से लेके 540 AD. This is called Golden Era. Samudragupta was known as Indian Napoleon by Dr. V.A. Smith. Then after the Gupta period, what happened? फिर फॉरेन इन्वेजन शुरू होता है। तो हु आर द फॉरेन इन्वेडर्स इस बार? हुन। एंड पावर सेंटर में कंसोलिडेशन में शुरू होगा तो कौन सा एम्पायर? वर्धन एम्पायर। तो हु आर द फाउंडर? प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन was also known as lion to Hun deer, lion to Hun deer. ठीक है। So he established an empire that is called Vardhan Empire, and the most important ruler of Vardhan Empire was what? Harshavardhan. Harshavardhan ruled for 606 to 646 AD, and he was known as Uttarpath Swami. Harshavardhan was known as Uttarpatha Swami. Getting my point? So this is the historical development till 7th century. Okay. So the later part, that is about the southern kingdoms, we will take up in the next lecture. So revise the things, try to keep the things, and it will help to understand the subsequent lectures. So take care, good luck, thank you.